with you the concept of cash book. And the basic objective to discuss with you the concept of cash book was that our next topic is that is about the bank reconciliation statement, to whom I would like to discuss with you. But you will only be able to understand the concept of this bank reconciliation statement at that point in time if you have a clarity about the 3-column cash book. Fine. So whatsoever the concept which I have discussed with you in the last session, you are welcome to ask the question. If you are having any question in your mind, you are welcome to ask the question. जी तारिक. हाँ जी, उसको हमने ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंटिंग की, ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, इसको कभी भी बैलेंस नहीं करना. उसकी रीजन ये है कि द डिस्काउंट विच इज रिपोर्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज गोइंग टू इंडिकेट द डिस्काउंट अलाउड एंड विच इज आल्सो कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंस. ओके. However, the discount which is reported on the right hand side of the cash book is considered as your income. Okay. So that is why we cannot take the balance. Why? Because one part is the expense, another part is the income. However, cash is your asset. Fine. So when the cash is your asset and bank is also your asset, it can increase, it can decrease. So technically in cash book, we are simply going to explaining the reason that why the cash is increasing and why the cash is decreasing. So ultimately by the end of the month, we have to determine its balance, so that we should know that how much cash is available in our pocket and what is the level of cash that is available in the bank account. So we only have to take the balance of the cash column as well as we have to take the balance of the bank column, but we don't have to take the balance of the discount column. Okay. Why? Because the debit side discount is indicating discount allowed or your expense, and the right side discount is going to indicate your discount received or your income. Okay. चले. Anything else जी? चले अब हमने जी पूछें जी आमिर क्या कहते हैं? जी सर, जो कल हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी में जो बैलेंस शीट एंड पे कैलकुलेट की थी, उसमें जो कैश है वो हम सर किस तरह कैलकुलेट उसमें कर रहे थे? 89,000 जो उसका बैलेंस. आपने उस कैश पे नहीं जाना. असल में ये है कि वो ये एक डेमो बैलेंस शीट बनाई हुई है जिसमें हमने दोनों साइड्स को बराबर किया हुआ है. ठीक है. एक साइड पे कैश भी रखा हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर हमने जो है अकाउंट पेबल भी रखे हुए हैं. तो बेसिकली उसकी तरफ आपको ये बताना मकसूद था कि दैट इज हाउ द मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, and if we have some unrealized gain or unrealized losses, then how they will be adjusted into the stockholders equity or in your capital account. Simple. Right. तो वहां पे ना आपने अकाउंट पेबल पे तवज्जो देनी है ना कैश पे तवज्जो देनी है. वो सिर्फ एज ए डमी फिगर्स हैं. आपको सिर्फ एक डेमो किस्म की बैलेंस शीट बना के दिखाई. राइट सर. ठीक. एनीथिंग एल्स जी? एनीथिंग एल्स? चलें स्टार्ट करें आज हम. ठीक है. So today's our topic is that is about the bank reconciliation statement. Okay. So the first and the most important question over here is that is this topic is a very technical one. Why? Because in this topic we have to analyze the two different sides at one point in time. In this topic, what actually we are required to do, that we have to analyze the two different sides at one point in time. Fine. So that the business with the bank is not as easy as we are expecting. Okay. So now we have to analyze the both sides of a transaction. Fine. So the first and the most important thing is that is the bank reconciliation statement. Why we are preparing the bank reconciliation statement? We are required to prepare the bank reconciliation statement only in that condition if the balance computed by us differ than the balance shown by the bank or the balance communicated by the bank. How the bank is going to communicate the balance? That we have to submit a request to the bank, then the bank will issue you a bank statement, and in that bank statement that the amount
of you which is available with the bank will be shown to you. Simple as that. Let's suppose that is your book is that being as a depositor, here the two parties are involved. One is the depositor. ठीक है, तो हम बुनियादी तौर पे क्या है, डिपॉजिटर हैं. ठीक है, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, दैट वी आर द डिपॉजिटर. ओके, और दूसरी साइड पे क्या कौन खड़ा है, दैट इज द बैंक. ओके, सो द डिपॉजिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन or the depositor is required to keep the record of cash at bank. And how the depositor is going to keep the record of cash at bank? The depositor is going to prepare its cash book, just like the cash book as I have discussed with you. Okay, तो मैंने जो आपके साथ कैश बुक डिस्कस किया है वो ऐसा ही कोई खाम में वक्त ज़ाया नहीं किया. और अगर हम कैश बुक का कॉन्सेप्ट ना पढ़ें और स्ट्रेट अवे आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ा दें, आप कभी भी नहीं समझ सकते कि ये इसके बैक एंड पे स्टोरी क्या है. ठीक है, तो जो कैश बुक हमने पढ़ाई है, कैश बुक में आई हैव इंटेंशनली डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 column कैश बुक, वेयर वी आर हैविंग अ 3 column ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3 column ऑन द you can say that right side of the cash book. Okay, अब जब मैं कैश बुक की बात करूंगा तो इट मीन्स द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. ठीक है, अब मेरी सारी डिस्कशन में आई विल यूज द वर्ड ऑफ द कैश बुक, बट व्हाट डज इट मीन? It means the bank column of the cash book which is reported or which is given on the left side as well as given on the right side. ठीक है, तो जो 3 column कैश बुक में बैंक का कॉलम राइट और लेफ्ट पे दिया गया, अब हमारा ताल्लुक उसके साथ है. अब हम कैश बुक के अंदर कैश के साथ हमारा कंसर्न नहीं है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो पहला मेरा सवाल ये था कि दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज that is the bank reconciliation statement is prepared only in that condition if the balance computed by you in your cash book differ than the balance computed by the bank. ठीक है, let's suppose as per your information that you are having 100,000 rupees in your bank account, but the bank is saying that no, you only have a 10,000 rupees in your account. So your claim is that you have 100,000, but the bank is saying no, you only have the 10,000. So now you have to prepare the bank reconciliation statement. Okay, it is not the job of the bank to prepare the bank reconciliation statement. It is the sole responsibility of the depositor to prepare the bank reconciliation statement. But before preparing the bank reconciliation statement, you have to submit a request to the bank that you are in need of the bank statement. Okay, so the bank will issue you the bank statement. Now you have to analyze the bank statement and you have to compare it with the transaction which you have already recorded in your cash book. अब आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट को अपने सामने खोल लेना है और अपनी कैश बुक को भी खोल लेना है. तो नाउ यू हैव टू टैली द ट्रांजैक्शन. ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस यू विल आइडेंटिफाई सो मेनी ऑब्जर्वेशन. अब वो सो मेनी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती हैं? सो मेनी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती हैं कि सम ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच यू हैव रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक बट दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट येट रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट. Then some of the transactions are recorded by the bank and they are reflected in the bank statement but not yet recorded by you in the cash book. ठीक है जी, मैंने क्या कहा जी? अगर कोई मेरी बात को रिवाइज कर दे या मुझे देखेंगे आपको मेरी बात समझ लगी है कि क्या क्या कहा है मैंने आपको. जी जी हाँ भाई, बाकी के लोग भी क्लास का हिस्सा हैं. तारिक राइट सर, हो सकता जरा है थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें, जोर लगाएं. जी सर, तारिक भाई भी ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ अमाउंट्स में भी डिफ़र हो सकती हैं या ऐसे कोई चेक हो या ऐसी कुछ क्लेम कैश जो बैंक डिपॉजिट करना या चेक डिपॉजिट करना बैंक भूल गया हो या ऐसे कोई चेक हो जो रिटर्न हो चुका हो और हमें में भी वसूल भी ना हुआ हो अभी तक और हम समझे कि वो क्लेम हो चुका है या रिकनसाइल बैंक से करना हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास अपना खाता होना चाहिए एक. जी ठीक है.
ठीक है, अब इस अपना माइक ऑफ कर दें आप पहले जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि पहली बात तो ये है, बैंक भूलता नहीं है, बैंक ना कभी नहीं किसी भी चीज को भूलता, और बीइंग एज ए डिपॉजिटर आप भी नहीं भूलते, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे क्या होता है, दैट एन एक्शन हैज बीन डन बट दैट एक्शन हैज नॉट येट बीन कम्युनिकेटेड टू एनी वन ऑफ द पार्टी। कहीं ना कहीं एक्शन हो गया लेकिन अभी तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो अगर वो वेल इन टाइम कम्युनिकेट हो जाता तो आई थिंक सो दैट that such type of problem may not originate. That is, the bank is indicating a different balance and the balance computed by you is going to be indicate a different balance. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये है कि that there is a need to prepare the bank reconciliation statement only at that point in time if you have the bank account. ठीक है, so there are some of the people who don't believe to do a business with the bank, then there is no need for them that they have to prepare a bank reconciliation statement. तो सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक अकाउंट का होना जरूरी है, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरी बात है कि if a disagreement exists between the balance computed by you in your book, fine, that is called as a cash book. Depositor book is the cash book, ठीक है। However, the bank is going to reflect all of the transaction in a bank statement, ठीक है। So bank is having its own book and depositor is having its own book. So the depositor book is the cash book, okay. Whereas the bank's book is a bank is going to keep the record of transaction in their own book, okay. अब यहाँ पे क्या हुआ कि when a disagreement exists, then there is a need to prepare the bank reconciliation statement. And who will prepare the bank reconciliation statement? It is the job of the depositor. The bank is not going to prepare the bank reconciliation statement. ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने क्या कहा था कि why a disagreement exists between the bank's balance and the cash book balance. The disagreement exists due to several reasons, okay. अब वो क्या reasons हैं? There are certain transactions which are recorded in the cash book but not yet recorded in the bank's record. There are certain transactions which are recorded in the cash book, but these transactions are not yet recorded in the bank's record. That's why a disagreement exists between the balance computed by the depositor and by the bank. Now we have to pay attention toward this factor, that what are the transactions which are recorded in the cash book but not yet recorded in the bank's record. वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। इसमें एक ट्रांजैक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग चेक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग चेक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या हैं, that is we are also going to use the word of unpresented checks for them. Outstanding checks are those checks which are issued by the depositor in order to make a payment to someone else, okay. That is deposit and that is outstanding checks are those checks which are issued by the depositor, okay, in order to make a payment to someone else, but these checks are not yet presented in the bank for payment. देखे ना, बात ये है, मैं आपको चेक एक जारी कर देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई मैंने तारिक साहब के पैसे देने थे, ये फौरन से इसको मैंने जो है ना चेक काट के दे दिया। जैसे ही मैंने चेक काटा तो मेरी जो किताब है वो कौन सी है, कैश बुक। कैश बुक से मुराद क्या है, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विच इज रिपोर्टेड ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैंने फौरन से अपने बैंक अकाउंट में रिडक्शन की होगी कि नहीं की होगी, की होगी। अच्छा, अब वो जो चेक है वो राणा साहब ने अपनी जेब में डाल लिया और राणा साहब जो है वो सैर वैर करते रहे और इनको पता था कि भाई मैं जो है ना 6 महीने इसकी वैलिडिटी टाइम पीरियड है, तो मैं जब भी बैंक में जाके जमा कराऊंगा इंशाल्लाह पैसे जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब हुआ क्या, आई हैव इशूड द चेक, आई हैव रिकॉर्डेड अ रिडक्शन इन माय ओन अकाउंट, इन माय ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट दिस चेक इज नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जाहिर बात है मैंने अपने रिकॉर्ड के अंदर बैंक बैलेंस में कमी कर ली, however the bank has not yet recorded a reduction in the value of my balance. That is why a disagreement exists between the balance computed by me and the balance computed by the bank. जी यहां तक देखें बात हमें लगती है आउटस्टैंडिंग चेक्स की। ना 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 ना, गलत 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 राना साहब, सारा काम ही आपने तो गलत कर दिया। मिल नहीं नहीं गया, सर, हमने एक चेक भी ऐसा चेक जो हमने अपनी कैश बुक में से फाड़ा और किसी और पार्टी को इशू किया कि जा भाई ये तुम्हारे हमने पैसे देने थे, ये अपने पैसे ले लो। अब दूसरी पार्टी ने चेक तो ले लिया लेकिन चेक रख लिया अपनी जेब के अंदर, अभी तक वो चेक बैंक में उन्होंने जमा ही नहीं कराया। लेकिन जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो फौरन से हम क्या करते हैं, हम अपनी कैश बुक के अंदर रिडक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि दिस मच अमाउंट ऑफ बैलेंस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये है बुनियादी तौर पे आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या हैं, दीज आर द चेक इशूड बाय द डिपॉजिटर। whenever a check is issued by the depositor, तो correspondingly the depositor is required to record a reduction in the cash book। लेकिन कैश बुक का कौन से बैंक कॉलम है, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ कल एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो कहता है कि वी हैव परचेज अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम अलाइड मशीन या जो भी हमारा कंपनी का नाम था, ठीक है, और वी हैव पेड अ चेक ऑफ 2000 एंड साइंड अ नोट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। अब हमने तो चेक वेंडर को जारी कर दिया 2000 रुपए का, तो जैसे ही हमने चेक जारी किया था फौरन से हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट कर दिया था 2000 रुपए से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वाकई क्या उस कंपनी ने जिसको हमने चेक दिया उसने ये चेक अपने बैंक अकाउंट में भी जमा कराया कि नहीं जमा कराया। तो जब तक वो अपने बैंक अकाउंट में इस चेक को जमा नहीं कराएंगे कलेक्शन के लिए, तो हाउ आवर अकाउंट विल बी रिड्यूस, श्योरली आवर अकाउंट विल नॉट बी रिड्यूस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दैट इज ओइंग टू दिस रीजन व्हाट हैड हैपेंड दैट द बैलेंस कंप्यूटेड बाय यू इट डिफर्ड देन द बैलेंस कंप्यूटेड बाय द बैंक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट इज डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे यहाँ बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि that whole of the day what we are going to do it, we are selling the product, we are going to generate the cash, and whatsoever the cash which we have collected in the whole day we prefer to deposit it into the bank account। अब नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं कि जैसे 4-5 बज रहे होते हैं, उसे पता है 5 बजे बैंकिंग टाइम खत्म होना है, ठीक है, तो वो फौरन से अपना कैश इकट्ठा करते हैं 4 बजे और अपने जो है अपने मुनीम को, अपने मुंशी को या अपने अकाउंटेंट को कैश देते हैं, उसे कहते हैं जाओ फटाफट जाके से बैंक में जमा करा के आओ। ठीक है, अब जैसे वो मुनीम साहब जो है वो आपकी कंपनी से निकले, तो निकलने से पहले आपने कहा कि दिस मच अमाउंट ऑफ कैश वी हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये हमने चेक जो है, ये हमने कैश जो है वो बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया है, फौरन से अपनी कैश बुक को अपडेट करो कि कितना कैश जो है वो हमने बैंक में जमा कराया। तो हमने अपने बैंक रिकॉर्ड को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। वी हैव डेबिटेड द कैश बुक, वी हैव डेबिटेड द कैश बुक बिकॉज, ठीक है, because we have handed over a cash to our accountant and now the accountant has started traveling toward the bank. Unfortunately, when the accountant reached at the bank's door, fine, and he found it that the bank is closed, so mean that neither the cash is in the custody of the depositor nor the cash is in the custody of the bank. The cash is in transit. The cash is in transit. So this is the concept of the deposit in transit. So mean that deposit in transits are those deposits which are recorded in the cash book but not yet recorded in the passbook. The bank will enter this cash in his account at that point in time whenever the bank is going to collect the cash from the accountant. Okay? But unfortunately your accountant reached at the bank and he found it that the bank is closed. Fine. So such kind of things are called as deposits in transit. Deposit in transit. So they are recorded in cash book but not yet recorded in the passbook. That is why disagreement in balance exists between the balance computed by the depositor as well as the bank. जी, deposit in transit के बारे में समझ लगा जी आपको? यस सर। बाकी के लोगों को भी या खाली तारिक को ही हैं? यस सर, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन है बोले मरियम सर। सर अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है, सपोज अगर हमें अभी नहीं
जो मैंने बात करनी है ना पहले वो समझनी है। अभी मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं देना, उसकी वजह ये आप अभी बाद में आएगा ये कॉन्सेप्ट। अभी हम तरतीब के साथ चीजों को सुनेंगे। ओके सर। अभी इसकी बारी आएगी, जिस वक्त उसकी बारी आएगी ना फिर आपने सवाल करना है, ठीक है? क्योंकि अभी हम तरतीब से चल रहे हैं बातें। अभी हमने कहा कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ठीक है, बट नॉट इन रिकॉर्डेड इन द बैंक्स रिकॉर्ड। तो अभी तक कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक के रिकॉर्ड में अभी तक नहीं आई लेकिन कैश बुक में लिखी हुई है। उसमें दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक, सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ओके ओके सर। ओके चलें, अब हम ऐसा करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर। अब क्या रौला है, अब क्या मसला है जी? कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड। तो डिपॉजिटर का रिकॉर्ड कौन सा है? कैश बुक। ओके, अब उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्विस चार्जेस, ठीक है? द बैंक इज रेंडरिंग यू द सर्विसेज। तो बैंक के दो किस्म की इनकम होती है, एक इंटरेस्ट इनकम होती है, एक नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है? तो ये जो बैंक लोन देता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये इसकी मार्कअप इनकम या इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है? इसी तरह से द बैंक इज गिविंग यू द सो मेनी फैसिलिटीज टू द डिपॉजिटर, जस्ट लाइक, ठीक है, इश्यूएंस ऑफ द चेक बुक, इश्यूएंस ऑफ द डेबिट कार्ड, ठीक है, यू आर गोइंग टू यूज द फैसिलिटी ऑफ द यू आर गोइंग टू यूज द फैसिलिटी ऑफ द एटीएम मशीन, ठीक है, and then is the then you are going to take the facility of the bank's demand draft, fine, so such kind of a thing, online transfer, telephonic banking. तो इसका मतलब है बैंक is giving you so many services but these services are not without any cost, तो ultimately the bank will have to deduct the money out of your account. तो बैंक जो है ना आपसे पूछता नहीं है कि अगर आपकी इजाजत हो तो आपके अकाउंट से पैसे काट लूं, ठीक है? तो बैंक जो सर्विसेज देता है ना तो उसके बदले में, ठीक है, आपको जो है आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आपको एक छोटा सा मैसेज आपके जो है ना उसके मैसेज सेक्शन में आ जाता है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन, यू कैन से दैट दैट इज डिडक्टेड बाय द बैंक। ओके, तो व्हेन द बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट सम ऑफ द अमाउंट आउट ऑफ योर अकाउंट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें कैसे पता लगा द बैंक हैज डिडक्टेड सम ऑफ द चार्जेस, ठीक? Why? Because when a disagreement exists between the balance computed by you and by the bank, at that moment you have requested for the bank statement, and bank statement is reflecting that some of the service charges are charged by the bank. So this transaction is recorded in the bank's record but not yet recorded in your own record. So now there is a need to update your record so that your balance should be reconciled with the balance of the bank. जी, यहाँ तक देखें जी, मेरी बात यहाँ पे समझ लगी है? अब मैंने क्या कहा? देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर। जी, हाँ भाई, बाकी के लोग भी? यस सर, क्लियर है। हाँ तैयब लतीफ क्या कहते हैं? जी सर क्लियर है। अच्छा चलें, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है, that is the one is the concept of service charges, second is the concept of income, ठीक है? You have your deposits in the bank, ठीक है, and whatsoever the money which you have deposited, you are also going to get certain return on that, and whenever you are going to earn any income on that, that income will be transferred in your account. So in this way your balance is going to be increased in the bank, but that information was not communicated to you, that is why you haven't recorded this information in your accounting record, ठीक है? तो आपने देखा कि आपको बैंक स्टेटमेंट में कुछ नजर आ रहा है कि आपको कुछ डिपॉजिट्स पे अपना रिटर्न मिला है, ठीक है, एंड ड्यू टू इट योर बैंक अकाउंट इज इंक्रीज बट दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट conveyed to you on time, that is why you haven't reported this information in your cash book. So now on the basis of the information reflected in the bank statement, now you simply have to update your information in the in your own accounting record, that is your cash book. जी देखें जी, ये मेरी बात समझ लगी आपको? जिस तरह सर्विस चार्जेस के प्रोसेस में बैंक आपके अकाउंट में से डिडक्शंस कर लेता है, इसी तरह से अगर आपको कोई आमदनी हुई है,
तो उससे आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया, but that information was not communicated to you well on time. That is why you have not recorded this information in your cash book. So when this information will be communicated to you, then you will have to update your cash book, and as you will update your cash book, then the balance computed by you will be in agreement with the balance computed by the bank. Okay. उसके बाद सर एक क्वेश्चन है कि जिस जी बोलें जी मरियम, क्या करें? जो सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं वो मंथली डिडक्ट होते हैं, और कुछ एटीएम कार्ड की फीस वगैरह होती है वो ईयरली आपके अकाउंट में से डिडक्ट होती है, तो हम उसको कैश बुक में ईयरली और मंथली किस तरह से करेंगे ऐड? इसका मैं तरीकेकार बताता हूँ ना। देखें, अब ना यहाँ पे दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस तरह के अभी मैंने आपको मर्चेंडाइजिंग कंसर्न में दो डॉक्यूमेंट पढ़ाए थे, एक को कहते हैं डेबिट मेमोरेंडम और दूसरे को कहते हैं क्रेडिट मेमोरेंडम। ठीक है, इज इट क्लियर? जी जी सर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर भी डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो यूज होता है, लेकिन बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर इशूड बाय द बैंक। ठीक है, whenever a bank would like to record a reduction in the depositor account, at that moment the bank is issuing a debit memorandum. Okay. ठीक है, and whenever a bank would like to increase the depositor account, so then the bank is issuing a credit memorandum. Okay sir. Okay. ठीक है, लेकिन अब इस डेबिट मेमो को और इस क्रेडिट मेमो को उस डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो से कंफ्यूज नहीं करना मेरे बच्चा। ओके ओके सर। ठीक है, तो डेबिट मेमोरेंडम किस चीज की इंडिकेशन है? द डेबिट मेमोरेंडम इज इंडिकेटिंग दैट द डिपॉजिटर अकाउंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सर्विस चार्जेस। यस सर। And credit memorandum is indicating that the depositor account is increased due to any kind of profit, due to any kind of income. Okay, okay sir, okay. ठीक है, okay, चलें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश, ठीक है, चलें। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, हमने yesterday I have discussed with you one of the concept। ठीक है, कल की जो ट्रांजैक्शन थी ना वो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं है आपके, वो कहते हैं सराइकी में क्या कहते हैं साढ़े वेले को भा लेंदा पे, तो वो भा लगाने के लिए नहीं थी आपके वेले को। ठीक है, उसमें कल हमने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी कैश बुक के अंदर जिसमें हमने कहा कि वी हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ मिस्टर जॉन, देन द चेक ऑफ मिस्टर जॉन इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट एंड द बैंक said that the check of Mr. John is dishonored due to NSF। ठीक है, हमने जब कल कैश बुक पढ़ी थी तो उसके अंदर क्या था कि जो भी है हमारी कंपनी जो है वो मिस्टर जॉन से चेक रिसीव कर रही है, तो जैसे ही हमने चेक रिसीव किया था तो फौरन से हमने क्या किया था, वी हैव डेबिटेड द बैंक अकाउंट। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम हमें पता ये चला दैट द मिस्टर जॉन डोंट हैव द सफिशिएंट मनी इन हिज अकाउंट, so that is why then what had happened, that is the bank has returned the check to the depositors। ठीक है, तो जिसने इसको जमा कराया था उसको उन्होंने वापस कर दिया। उसने कहा जी दिस चेक इज डिसऑनर्ड, व्हाई? बिकॉज द इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल इन द अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के डिसऑनर्ड चेक होंगे, दो किस्म के डिसऑनर्ड चेक होंगे। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज डिपॉजिट डिसऑनर्ड, another is called as issued dishonored। तो इनमें दोनों में बड़ा फर्क है। डिपॉजिट डिसऑनर से मुराद ये होता है कि किसी का चेक हमारे पास आया एंड वी हैव डिपॉजिटेड दिस चेक इन आवर अकाउंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, जैसे हमने चेक रिसीव किया वी हैव इंक्रीज द बैंक बैलेंस, लेकिन इफ द बैंक हैज गिवन अस एन इंटीमेशन दैट द इनसफिशिएंट फंड इज अवेलेबल in the party's account, then again we are required to credit the cash book। जब हमें चेक मिला था तो हमने कैश बुक को डेबिट किया, और जिस वक्त हमें पता चला कि insufficient funds are available and that amount can't be transferred in our account, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि now again we have to credit the cash book। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो इफेक्ट आएगा ओनली एंड ओनली इन द कैश बुक आएगा। ठीक है, दैट ट्रांजैक्शन विल नेवर एवर बी रिकॉर्डेड इन द बैंक्स रिकॉर्ड। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द केस ऑफ द डिपॉजिट डिसऑनर। जब डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया और फौरन से बैंक ने इंटीमेशन जारी की कि भाई इसके पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं है,
तो जो हमने इंक्रीज उसके अंदर लिखा था उसी से हमने अपनी अमाउंट को, बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर लिया, जिस तरह कल की क्लास में मैंने आपको कैश बुक के अंदर दिखाया था। सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू डिसऑनर। ठीक है, इशू डिसऑनर में होता है बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी के मामलात में इतने मसरूफ होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े और कितने पैसे नहीं पड़े। ठीक है, तो हमने जो है अपने अकाउंट के अंदर ना देखा कि कितने पैसे पड़े हैं। लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में 1000 रुपए पड़े थे, मैंने किसी एक पार्टी को 1500 रुपए का चेक जारी कर दिया। ठीक है, आई वांट टू मेक अ पेमेंट टू समवन एल्स ऑफ $1500। ठीक है, बट आई वाज नॉट नोइंग दैट either the sufficient amount is available in my account or not, but I have issued a check। जब मैंने चेक जारी किया तो I have reduced my बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मैंने क्या किया, अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो मैंने जिस पार्टी को चेक दिया था वो पार्टी जनाब थोड़े दिन के बाद आ गई, उसने कहा जी देखें जी आपके खिलाफ अब FIR ही बनती है। ठीक है, क्योंकि आपने जो चेक जारी किया था उससे तो आपने मुझे धोखा दे दिया है, बिकॉज इनसफिशिएंट फंड इज अवेलेबल। ठीक है, insufficient fund was available in your account, that is why the bank has not yet made us a payment and they have returned back the check। तो अगर इशू डिसऑनर होगा तो इशू डिसऑनर की सूरत में क्या बनेगा, पहले हमने अपने बैंक कॉलम को रिड्यूस किया था। ठीक है, जब हमने चेक जारी किया अब वही चेक हमारे पास वापस आ गया, तो नाउ वी हैव टू इंक्रीज द बैंक बैलेंस अकाउंट। तो ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक। जी मरियम, अब आप बताएं आपका सवाल क्या था। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो चेक बाउंस हो जाते हैं उनका मतलब वो अब उस टाइम पे मैं कंफ्यूजन ये थी कि वो कैश इन ट्रांजिट में काउंट होगा या किस चीज में। सो उस टाइम मैं ना, जो चेक बाउंस हो जाते हैं ना वो चेक पता लग जाता है ना, भाई पेमेंट नहीं हुई, वो चेक आपको वापस हो जाता है, फौरन से इंटीमेशन आपके पास आ जाती है। अब उसमें दो केसेस हैं, वन इज द केस ऑफ डिपॉजिट डिसऑनर एंड सेकंड इज द केस ऑफ इशू डिसऑनर। डिपॉजिट डिसऑनर में क्या था, किसी का चेक हमें मिला जिसे हमने अपने बैंक में जमा कराया लेकिन उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ना थे। ओके, यस सर। और इशू डिसऑनर के अंदर वो है कि वो चेक जो मैंने अपनी चेक बुक से निकाला और किसी पार्टी को दिया, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं या के नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारी रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसमें बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे बिजनेसेस करते हैं, ठीक है, इनको पता होता है हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, ये फिर क्या करते हैं, ये फ्यूचर डेट का चेक जारी करते हैं। फ्यूचर डेट का चेक, आज तारीख है, लेट्स सपोज 15 तारीख है, उस बंदे को पता है कि मैंने किसी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो वो उसको जो है ना अगले महीने की 2 तारीख का चेक जारी कर देगा आज ही, और कहेगा जी ये मैं चेक आपको जारी कर रहा हूँ एडवांस डेट का। ठीक है, लेकिन आपने बैंक में नहीं जाना। ठीक है, बैंक में नहीं जाना आपने, ये 2 तारीख के बाद आप एलिजिबल होंगे इस चेक को इनकैश कराने के लिए, बिकॉज इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल इन माय अकाउंट। ओके सर। तो टेक्निकली इस तरह से वो दूसरी पार्टी से टाइम भी ले लेते हैं और उसके सरमाए को अपने कारोबार के अंदर यूज भी करते हैं। ओके सर। जी, अभी ये किसी ने हैंड रेज किया था, पता नहीं अहमद है कौन है। सर वो ये पूछना था कि जब हम चेक इशू करते हैं हम अपना अकाउंट देख नहीं रहे होते कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं शुरू में? बेटा हम देख रहे होते हैं, देखो मेरी एक बात सुनो, देख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप खाना खाने के लिए गए, आपकी जेब में डेबिट कार्ड था, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके अकाउंट में इतने सफिशिएंट पैसे होंगे, उसी वक्त उसने उसको ATM, उसी वक्त उसने अपनी जो मशीन है उससे स्वाइप किया और उसने कहा कि आपके अकाउंट में तो बैलेंस ही कोई नहीं है, तो बताएं फिर क्या करेंगे आप उसको? पता तो सब कुछ ही होता है, क्यों नहीं पता होता? नहीं क्या है दोबारा? हाँ जी हाँ, ऐसा है ना, मतलब हमें नहीं पता कि बैंक उसमें डिडक्शंस कर रहा है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था, मैंने चेक जारी कर दिया और बाद में वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, मेरा इशू किया हुआ चेक ही बाउंस हो गया। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, आई डू हैव ए क्वेश्चन। जी अच्छा सर, बेसिकली हमारे पास जो भी कोई चेक कैश डिपॉजिट होता है या उसको हमें प्रोसेस लाना होता है, हमारे पास तो 6 मंथ्स तक का टाइम होता है उसको बाउंस होने की देने के लिए। तो इन दैट केस जो है हम उसको क्यों डॉर्मेंट के तौर पे या बाउंस के तौर पे कंसीडर करते हैं? नहीं देखें, बात ये है कि 6 महीने, अब वो देखें ना, बात है मैंने आपको लेट्स सपोज मैंने अपनी चेक बुक से चेक काटा और आपको चेक दे दिया, ठीक है,
आपने जैसे ही चेक लिया आप फौरन से जाके बैंक में जमा कराएंगे इसको। जी सर। ठीक है ना, आपने बैंक में जमा कराया तो आपको जवाब मिल गया कि जनाब इस पार्टी के अकाउंट में तो पैसे कोई नहीं है। आप वो चेक आज जाके जमा कराएं या अपना जो भी वैलिडिटी टाइम पीरियड है उसके अंदर जाके जमा कराएं, जिस भी पॉइंट पे जमा होगा उस पॉइंट पे अगर पैसे नहीं होंगे तो वो चेक तो बाउंस होगा ही होगा। सर तो बहुत सीरियस लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इसके अगेंस्ट, यानी कि हमारा चेक को लिमिट भी पड़ा था लेकिन है लीगल प्रोसीडिंग है, लेकिन ये लीगल प्रोसीडिंग इसलिए डेवलप हुई है ताकि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट डेवलप हो। ठीक है, सिर्फ ट्रस्ट डेवलप करने के लिए है कि भाई ये इसके ऊपर क्योंकि असल में गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस हो। ओके सर। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन हो। तो उसमें अक्सर जो है हम जो है वो अपनी चेकबुक से चेक फाड़ते हैं और फटाफट से चेक लिख के किसी को दे देते हैं, बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है। इसीलिए बैंकर्स चेक यूज किया जाता है। ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है ना उसमें हम बैंकर्स चेक यूज करते हैं। वो जो बैंकर्स चेक होता है इट इज जस्ट लाइक द कैश। ठीक है, तो बैंकर्स उस वक्त चेक अपना चेक इशू करते हैं जिस वक्त हम उन्हें कैश देते हैं। हमने कैश दिया, बैंकर्स ने चेक इशू कर दिया किसी पार्टी के नाम का, तो खास तौर पे जमीन के लेन देन के अंदर जो है बैंकर्स चेक पे हम बिलीव करते हैं। ठीक है, पार्टी के कटा हुआ चेक पे यकीन नहीं करते। हमें क्या पता उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। सर तो फिर जो पे ऑर्डर्स इशू होते हैं ये सही, यही एक ही चीज है, ये बैंकर्स चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो सर ये जो एज ए गारंटर जो चेक्स हम लोग समटाइम्स बिजनेसेस में या इंस्टॉलमेंट वाले टाइम पे वो हमसे एक चेक लेके रखते हैं ब्लैंक, तो उसको हम लोग फिर अपने कैश बुक में किस तरह से मतलब ऐड करेंगे कि हमें। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। इसमें देखें मैं इसका तरीकेकार आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज दैट अभी आजकल तो पता नहीं है मुझे लीजिंग वालों का अब तो प्रोसेस नहीं पता, माजी के अंदर इनका प्रोसेस ये होता था कि लेट्स सपोज अगर आपने 3 साल के लिए लीज पे गाड़ी ली है ना, तो वो जो लीज पेमेंट जितनी भी बनती है, लेट्स सपोज आपकी माहाना लीज पेमेंट बनती है 20,000 रुपया, तो वो 20,000 रुपए के 36 चेक आपसे ले लेंगे 3 सालों के। ओके, ठीक है, आपने चेक उनको जारी कर दिए। ठीक है, लेकिन वो जो चेक है उसके ऊपर हर महीने की 1 तारीख की डेट डली हुई है कि हर महीने की पहली तारीख को वो जो लेसर है वो इस चेक को आपके अकाउंट में भेजेगा और इसको इन कैश कराएगा। ठीक है, तो हाँ, तो वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे उस वक्त अकाउंट के अंदर इतने पैसे होने चाहिए ताकि उस पार्टी का क्लेम सेटिस्फाई हो जाए, अदरवाइज वो चेक बाउंस कर जाएगा, और चेक बाउंस कर गया तो अल्टीमेटली फिर वो जो लेसर होता है वो भी अपनी गाड़ी को पकड़ लेता है। ओके सर, ओके, क्लियर। ठीक है जी, चलें, ये था हमारा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर दैट इज द NSF चेक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है कि सम टाइम we are going to make a mistake while maintaining our cash book. If we have committed a mistake, then we are responsible to rectify that error. What sort of an error which we can occur at some time our cash book is overstated. If we have overstated the cash book, then there is a need to reduce the cash book. And sometime we have understated the cash book, then there is a need to increase the cash book so that we can bring a balance. Same is the case with the bank. The bank, what the bank can do, sometimes the bank is going to deduct the amount from the wrong account. ठीक है, just like बहुत सारे बैंक भी बेचारा गलतियां करता है, बैंक के भी ट्रांसपोजिशन एरर होते हैं। जिस तरह हमने कहा था when 2 digits of a figure they are going to be reversed, then a transposition error occur. For instance, एक अकाउंट था उसका नंबर था 401 और दूसरा अकाउंट था उसका नंबर था 104। ठीक है, तो उसको चाहिए था कि 401 को रिड्यूस करता, तो उसने 401 को रिड्यूस करने की बजाय किसको रिड्यूस कर लिया, 104 को रिड्यूस कर लिया। तो अगर गलती बैंक से हो गई है तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ रेक्टिफिकेशन इन इट। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके जो है जो आपका रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट्स है उससे इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाती हैं। ठीक है, मसलन एक ऐसी पार्टी जिसको आपने कभी चेक जारी ही नहीं किया लेकिन उस किसी और पार्टी का चेक आपके अकाउंट में से माइनस हो गया, तो आप फौरन से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये तो हमारा चेक है ही नहीं, ना ही हमने इशू किया। तो बैंक अपने रिकॉर्ड को दोबारा से रिकन्फर्म करेगा और फौरन से ये गलती पकड़ी जाएगी। देन द बैंक इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई इट्स ओन error. So mean that if the bank is going to commit an error, then the bank will have to rectify that error in their accounting record.
If we have committed an error, ठीक है, then we are required to rectify that error in our accounting record. ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे वजूहात हैं जिसकी वजह से क्या होता है that a disagreement exists between the balance computed by you and the balance computed by, you can say that is the balance computed by the bank. Okay. अच्छा, एक इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि खास तौर पे कि sometime what is going to be happen that our account is increased because of the online transfer, that some of the party, that any one of the vendor, any one of the supplier, any one of the customer to whom we have already sold a product on credit, but now that customer has transferred the funds in our account online. However, this information was not communicated to us well on time. That is why this transaction is not recorded in the cash book. Okay. तो ये इस किस्म की जो चीजें होती हैं, due to it what is going to be happen that a disagreement exists between the balance computed by the bank and the balance computed by you. अब मैं आप लोगों को यही जो बातें जो मैंने अभी तक की हैं इनको दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग शरीफ में रखेंगे और ये किताब का जो है ना एलिमेंट्स ये मैं आपको भेजता हूँ. बाकी फिर इंशाल्लाह जिस दिन हमारी फिजिकल क्लास होगी सैटरडे वाले दिन, उस दिन फिर जो है अब हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा. अब हमें ये पता लग गया कि ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो उस दिन फिर हम इस फिजिकल क्लास के अंदर इस मामले को हल करेंगे कि दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ थिंग. तो सबसे पहले हमारे पास सवाल ये था कि दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन दैट कंडीशन if we have a bank account and if a disagreement exists between the balance computed by the bank in his record and the balance computed by the depositor in his own book, that is the cash book. In the story of this bank reconciliation statement, cash book means the bank column of the cash book. That is why that before discussing the concept of this bank reconciliation statement, I have already discussed with you the concept of 3-column cash book, so that you should understand whenever I am going to use the word of the cash book, what does it mean? It means that is the bank column of the cash book, which is reported on the right as well as on the left hand side. Then secondly, who is responsible to prepare the bank reconciliation? It is the job of the depositor. The bank is not responsible to prepare the bank reconciliation statement. It is only and only the job of the depositor. The depositor is required to prepare the bank reconciliation statement just in order to get a confirmation about the bank balance. Then the third question is that why a disagreement exists between the balance computed by the bank and the balance computed by the depositor. The disagreement exists due to certain reason, in which the one reason is that some transactions are recorded in cash book, but these transactions are not yet communicated to the bank. That's why a balance computed by the bank differs than the balance computed by the depositor. In which one is the concept of outstanding checks or the unpresented checks. These are the checks which are issued by the depositor in order to make a payment to any party. Whenever the depositor is going to issue the check to any party, immediately they are going to record a reduction in the bank column. Okay. But the party who has received a check, they have not yet presented this check in the bank for the sake of collection. That is why your cash book is reduced, but your bank balance is not yet reduced. That is why a disagreement exists between the balance computed by the bank and the balance computed by you. Then second is the concept of deposit in transit. Most of the businesses, they prefer to keep their savings, to keep their money, you can say that in the bank. So whatsoever the cash which they have collected for whole of the day, by the end of the day, before the closing time, they will have to deposit this cash in their account. So here a problem over here is that you have sent your accountant to deposit the cash in the bank. But when your accountant reached at the door of the bank, he found it that the bank is closed. Fine. So this is the concept of the deposit in transit. So before handing over the cash to the, you can say that to your accountant, you have recorded this transaction in your cash book, and you have upgraded the balance of bank account
as you have handed over the money to your accountant. But the problem over here is that this money is in transit because the bank has not yet received it, because when your accountant reached at the doorstep of the bank, he found it that the bank is closed. Okay. Now, what we have to do, this is another reason for the, you can say that the disagreement between the balance computed by you and the balance computed by the, you can say that is the party. जी मोहम्मद असदुल हक क्या कहते हैं जी? एक्सक्यूज मी सर, सर क्या बैंक भी इन ट्रांजिट पोजीशन में हो सकता है? बैंक भी इन ट्रांजिट पोजीशन में हो सकता है, मसलन कैसे? फॉर एग्जांपल कि सर अब तो इफ आई एम अ डिपॉजिटर, मुझे डिले हो गया तो मैं इन ट्रांजिट पोजीशन में आ गया हूं, ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं कि जरा काइंडली ना जोर लगाएं, थोड़ा सा जरा आवाज जोर से ओके सर, ओके होप आई एम क्लियर नाउ। सर ये तो पैसे मैंने डिपॉजिट करने जाना था तो मैं डिले में आ गया, जिसकी वजह से मैं इन ट्रांजिट फेज में चला गया। कोई ऐसा केस बन सकता है कि बैंक भी इन ट्रांजिट फेज में हो? नहीं, अभी ऐसा कोई आया तो नहीं। चलो कोई ज़हन में आएगा तो फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसी सिचुएशन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने नहीं सुना। ओके हाँ जी, बैंक ने किस चीज के लिए डिपॉजिट कराना? डिपॉजिट तो हमने बैंक के पास पैसे कराने हैं, बैंक ने हमारे पास क्या डिपॉजिट कराना है? सर बैंक अक्सर ना यानी कि रिवर्सल एंट्रीज कर देता है, तो उसको हम किस पर्सपेक्टिव पे परसीव करेंगे? नहीं, वो रिवर्सल एंट्री, हाँ वो जो रिवर्सल एंट्री ये है कि अगर बैंक ने आपके अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट, आपके अकाउंट को रॉन्गली डेबिट या रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है तो फिर बैंक उसकी रिवर्स एंट्री करता है। वो तब होता है सर जब आपके अकाउंट में से लाइक एटीएम से भी कैश नहीं आता बट आपके उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। जी, बात औकात ये होता है कि आप एटीएम यूज करते हैं, कैश निकलता कोई नहीं है मशीन से और आपके बैंक के अंदर से डिडक्शन हो जाती हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर आप परेशान हो जाते हैं कि कैश भी कोई नहीं मिला और अकाउंट की आप रिडक्शन का मुझे मैसेज भी आ गया, तो फौरन से आप तिल मिला रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि इतनी बड़ी रकम थी जिसको मैं निकलवाने के लिए गया और जो है वो अपना मुझे मिली भी नहीं है और मेरे अकाउंट भी रिड्यूस हो गए हैं। तो फौरन आप जो है वो हेल्पलाइन के ऊपर फोन कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं या अल्लाह ये जल्दी से उठा ले, मेरा मसला हल हो जाए, कहीं मेरे पैसे ना गुम हो जाएं, ठीक है। तो उसमें फिर वो जो हेल्पलाइन वाला बंदा होता है, फिर वो आप उसको सारी स्टोरी रामलीला सुनाते हो, वो कहता है भाई सब्र कर, अभी कुछ दिन के बाद या अभी ये 24 घंटे के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, जो पैसे तुम्हें नहीं मिले वो इंशाल्लाह जो है वो दोबारा तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। वो रिवर्सल एंट्री, वो इसी को कहते हैं रॉन्गली डेबिट और रॉन्गली क्रेडिट। तो ये महीना भी ले जाते हैं, 60 दिन का टाइम पीरियड है जी, 60 दिन का। यस ओह माय गॉड, मेरे साथ हाथ हो चुका है ना, इसलिए मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे पैसे कब रिवर्स होंगे। सर मुझे तो पता भी नहीं चला पंप्स पे होता है मामला कि मतलब अक्सर मशीन यूज कर रहे होते हैं। हाँ, ये एटीएम कार्ड पे, ये खास तौर पे ये जैसे वक्त हम ये अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं पेट्रोल पंप पे, खाने वाली जगह पे, किसी ना किसी जगह पे ये मसला कभी ना कभी डेवलप हो जाता है। चलें जी, ठीक है, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट। अब इसी तरह से हमारे पास जो है क्या हुआ कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसमें पहला है दैट इज सर्विस चार्जेस। सो व्हेनेवर अ बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट द सर्विस चार्जेस, फाइन, so bank has recorded this transaction but we were not aware of this fact, that is why we have not updated our cash book. Secondly, that whatsoever the deposit you have in your bank, you are going to get a return on that. So that return is transferred in your account but that information is not communicated to you, that is why you have not updated your cash book, okay. And the third thing is that is the concept of your online transfer. Any one of the customer who has transferred the money in your account but that message was not communicated to you well in time, that is why the balance computed by you in your cash book differ than the balance computed by the bank, okay. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक, और विद इन डिसऑनर्ड चेक आई हैव डिस्कस्ड विद यू द टू कैटेगरीज ऑफ डिसऑनर्ड चेक. One is referred as deposit dishonor. This is the check which we have received from any customer and we have deposited in our account. As we have deposited in our account, we have assumed that the money will be transferred in our account, but that check was dishonored, mean that due to the not sufficient fund or due to any other reason as well. So once again, we have to reduce the cash book in this process. Second is the concept of, that is your
that is the issue dishonor. When we have issued the check, at that moment we have reduced the cash book, but now the same check is returned back to us. So now once again there is a need that we should increase our bank balance because this check was because the bank has not deducted the amount from their own record or from their own account. Okay, तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है नहीं जिसकी वजह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन को बनाने जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी खबरों का टाइम हो गया, आप भी सुने और मैं भी सुनता हूँ, तो इंशाल्लाह बाकी की बातें फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच दैट द टाइम व्हिच यू हैव स्पेयर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। अब हमारा थोड़ा सा बेस बन गया है तो उस दिन हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हम स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा।